Good morning, everyone. I'm Dr. Sukhwant Singh, Associate Professor at SIRTS Pharmacy, the Sage Group. Today, we are into the second semester, and the subject that I'm teaching right now is biochemistry. And today, we are going to start another topic in the syllabus, that is amino acid metabolism, or the metabolism of amino acids. The objective of this class is to appraise you about the various processes that are in the process of amino acid metabolism, and we will be talking, basically my lecture will be based upon these points that are being displayed over here. I'll be talking about introduction of the topic, classification of amino acids, then we'll be discussing some definitions like nitrogen balance, protein requirement, biological value. Then we'll go on to topics like digestion of protein, absorption of protein, and then very important topics that are related to the examination point of view, that are metabolism, metabolic fate of protein, and lastly we'll be discussing about metabolism of amino acids, wherein we'll be talking about removal of ammonia, deamination, transamination, and transdeamination. We'll also talk about fate of carbon skeletons of amino acids, and lastly we'll talk about metabolism of ammonia. And in this process, we will talk about very important topics like the urea cycle, which is a very important question with respect to the questions being asked in the RGPV University. So let us start off with the introduction of this topic. Metabolism basically is a term that has been classified into two different terms, that is anabolism and catabolism basically. And metabolism is equal to the total number of all chemical changes that occur inside our body. So anything that is happening in our body which is being done with help of a chemical reaction is usually a metabolic process or a metabolic change. And all these changes are basically divided into two major heads, visually the anabolism and the catabolism. And we have also discussed in our previous classes that anabolism is any process that requires energy, wherein small molecules are joined together to form larger molecules. For example, a chemical reaction of a glucose with another glucose to give you a dimer of a glucose or another molecule, or similarly any other process through which small molecules are joined together to give you larger molecules. So those processes are called as anabolic process or anabolism. And whereas catabolism is any process which is basically a energy releasing process, wherein large molecules are broken down into smaller pieces. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म कोई भी केमिकल प्रोसेस हमारे शरीर में होता है, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक हो, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. बेसिकली ये केमिकल प्रोसेस होते हैं, और इनके दो दो भाग हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. Now, energy in carbohydrates, lipids, proteins, etc. is used to produce ATP through oxidation. I request you all to please mute yourselves for stopping the background disturbances. Yeah. So, energy in carbohydrates, lipids, proteins is used to produce ATP through oxidation and reduction type reactions, which are the most commonest types of catabolic or metabolic reactions, but not limited to, of course, because there are many reactions that are occurring in our body that we have already discussed in our previous classes also. So, since our body, the main objective of digestion in our body is to bring about these chemical changes and produce catabolism so as to produce energy. So, in sum total, we can say that the fate of all the molecules is ultimately to produce energy by breaking down large molecules into smaller molecules in through catabolism. Whereas the other process in our body, like building up of our body structure, building up of cells, or basically our various parts of the body, these are made through anabolic changes, like for example cell division, etc. These are all anabolic. So if you talk about the metabolic pathways as a whole, the enzymatic reactions of metabolism form a network of interconnected chemical reactions or pathways that we have already discussed in my previous class when we talked about the process of changes in
carbohydrates, wherein we talked how glycolysis occurs and what are the various phases of citric acid cycle and electron transport chain. So we have already studied about these topics, and we have noted categorically that इन सभी प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स बड़े से छोटों में टूटते हैं. इसके अलावा इनके अंदर जगह 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 पर एनर्जी रिलीज होती है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं जो अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज करने वाले हैं. उसके बाद जब हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ा था, उस वक्त भी हम लोग ने ये देखा था कि किस प्रकार बड़े कार्बन्स जो होते हैं वो छोटी चेन्स में टूटते हैं. जैसे कि हमने देखा था कि -2C हर जगह होता है. 14 से स्टार्ट करो तो 12, 10 ऐसे करते हुए ऑड या इवन कुछ भी हो, तो वो अल्टीमेटली आपको एसिटाइल कोएंजाइम तक लेके जाता है, जो कि 2 कार्बन का है. और इस तरीके से, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान भी जो फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन है, उसमें हर स्टेप पर एनर्जी रिलीज होती है. और ये सारी की सारी जो प्रोसेस हैं, चाहे वो बीटा ऑक्सीडेशन हो, चाहे ईटीसी हो, चाहे सिट्रिक एसिड साइकिल हो, या ग्लाइकोलाइसिस हो, इन सभी में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है पूरे पाथवे में, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इन सब के अंदर केमिकल चेंजेस जो है वो होते हैं. The molecules of the pathway are called intermediates because the products of one reaction becomes the substrate for another. इसलिए इन सबको intermediate कहा जाता है, क्योंकि एक सब्सटेंस का जो एंड प्रोडक्ट है वो दूसरे सब्सटेंस का दूसरे रिएक्शन का स्टार्टिंग प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट बन जाता है ना. इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं. ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरकन्वर्टिबल भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंजाइम्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू पाथवे. ये हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी से समझ रखा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान किस प्रकार से एनर्जी खर्चा होती है और किस प्रकार से एनर्जी रिलीज होती है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑकर्स वाया द लॉस ऑफ हाइड्रोजन और द गेन ऑफ ऑक्सीजन. whenever one substrate is oxidized another substrate is reduced, है ना. तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन का लॉस हो और ऑक्सीजन का गेन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन. और इट इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हेनेवर वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, जब किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ऑक्सीडाइज substances lose energy whereas reduced substances gain energy. तो जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर से एनर्जी डिप्लीट होती है, और जो रिड्यूस सब्सटेंसेस होते हैं उन वो बेसिकली एनर्जी गेन करते हैं. कोएंजाइम्स एक्ट एज हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. और जो इसमें कोएंजाइम्स होते हैं, आपने जैसे कि प्रीवियस रिएक्शंस में भी आपने देखा है ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल में, कि ये जो कोएंजाइम्स होते हैं दीज एक्ट एज हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. जैसे कि आपने पढ़ा था NAD, हमने पढ़ा था FAD, हमने पढ़ा था. तो ये सारे कोएंजाइम्स हैं. 2 इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स आर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD प्लस, एंड फ्लेविएडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज FAD. Now if you talk about the various stages of metabolism, these are the various substrates that we are just seeing, that प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, या फिर चाहे फैटी क्यों ना हो. अल्टीमेटली ये सारे के सारे किसी न किसी माध्यम से कार्बोहाइड्रेट और फैट, स्पेसिफिकली ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से एनर्जी रिलीज करते हैं. बट यदि हम प्रोटीन की स्पेसिफिकली बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और इनके कुछ हिस्से प्रोटीन्स के जो वो एसिटाइल कोएंजाइम में की तरफ जाते हैं, कुछ क्रेब्स साइकिल की तरफ जाते हैं. बट अल्टीमेटली ये जो प्रोटीन्स हैं ये हम लोग को NH3 एज ए बाई प्रोडक्ट अमोनिया हम लोग को ये बताता है. So this ammonia is something which is of importance in this particular picture which I am showing you right now. Otherwise all the other processes are quite evident and we have already discussed a few of them. जैसे कि हमने फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से ऑलरेडी मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरे पढ़ लिए हैं हमने. तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 स्टेजेस यहाँ पे क्लियर कट हमको दिख रही हैं. पहली स्टेज 1 है, दैट इज़ डाइजेशन इन द GI ट्रैक्ट ऑफ द ल्यूमन, जहाँ पे हमारा जो फूड हमने लिया है उसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, उनका सबसे पहले कि डाइजेशन होता है GI ट्रैक्ट में. सेकेंड स्टेप में कोई एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, जैसे कि उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो बनते हैं आपके सेल्स के दौरान. और जो तीसरी स्टेज है वो आपकी स्टेज 3 है, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द टिश्यू सेल्स. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूजुअली ब्रेकडाउन होता है. सो इफ यू टॉक अबाउट द एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स,
दे आर प्रोसेस्ड इन 3 मेजर स्टेप्स। ये 3 मेजर स्टेप्स है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्टेजेस से गुजरते हैं, बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर पासिंग थ्रू these stages. First stage is the digestion, that is breakdown of food. Nutrients are transported to the tissue. The second step is anabolism or formation of catabolic intermediates, है ना, चाहे anabolism हो चाहे catabolic intermediates हो, which are split. So basically it is built into lipids, proteins and glycogen, or broken down by catabolic pathways to pyruvic acid and acetyl coenzyme है. And the last step is oxidative breakdown. Oxidative breakdown क्या होती है? Here the nutrients are catabolized to carbon dioxide, water and ATP. So we can see that the ultimate fate of all the molecules is to be broken down finally into carbon dioxide, water and ATP. And ATP is our energy currency that we have already discussed in our previous classes. So all the processes are ultimately yielding ATP, which is important for the metabolism, for the running of the body or for the normal functioning of the body. And any depletion in the ATP level leads to lack of energy, and further many problems are originating. So now coming to the most important or the cardinal point of today's presentation or today's class, that is protein metabolism. Since we have already completed with the metabolism of lipids and metabolism of the carbohydrates, our next step is of course the protein metabolism. So now let us talk about this important topic, that protein happens to be the building block of our body. और हमारे शरीर के अंदर जितने भी बिल्डिंग हो रही हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स बन रहे हों, टिश्यूज़ बन रही हों, या सेल्स डिविजन्स हो रहे हों, अल्टीमेटली ये सारे कहीं ना कहीं आपका प्रोटीन से संबंधित है। बिकॉज प्रोटीन का जो यूनिट है, जिन चीज़ों से प्रोटीन आगे चल के बनता है, उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारी बॉडी में, जो कि हमारी शरीर के लगभग हर सेल्स में कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये करता है। So non-essential amino acids can be formed by transamination, that is transfer of amine group to keto acids, and these can also be eaten. मतलब ये है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ये हमारे शरीर के अंदर बनाए भी जा सकते हैं ट्रांसएमिनेशन के द्वारा। इफ़ यूज फॉर एनर्जी, अमीनो एसिड्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन. Ammonia and keto acids are produced as byproducts of oxidative deamination, and ammonia is finally converted into urea and excreted from the body. Okay, so कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांस एमिनेशन किया जाए, ट्रांस एमिनेशन का मतलब होता है अमाइन ग्रुप को यहाँ से वहाँ मूव करना। तो ट्रांसएमिनेशन जो कि अमीन ग्रुप को कीटो एसिड पर ट्रांसफर करता है, उसको हम ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट एक बार आरजीपी में आ चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आगे चल के अपनी स्लाइड्स में कवर करूँगा। सो इफ़ यूज फॉर एनर्जी, अमीनो एसिड्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, है ना। तो अगर एनर्जी के लिए आप इन अमीनो एसिड्स को यूज़ कर रहे हो तो उनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, है ना, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और ऑक्सीडेशन होने के बाद में डीएमिनेशन होगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अमोनिया एंड कीटो एसिड्स बनते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड्स, और फाइनली अमीनो एसिड जो अमोनिया बना है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। एंड अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। इस बात को हमेशा हमको याद रखना है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब यहाँ ध्यान से आप लोग अगर इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है CO और NH, है ना, ये वो फीचर है। और फर्दर यहाँ पे देखिए COH भी आपको दिख रहा है। तो ये वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो अमीनो एसिड पड़ा है। बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो जो पहला स्टेप है वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, यानी यहाँ इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है उस पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर से ये मॉलिक्यूल को ब्रेक होता है, यानी बेसिकली ये वाली जो पोजीशन है यहाँ से ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। और ये मॉलिक्यूल जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये दो हिस्से आपको देगा, एक आपको देगा पेप्टाइड वाला हिस्सा और दूसरा आपको देगा अमीनो एसिड वाला हिस्सा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये अब आपका अमीनो एसिड हो चुका है, यानी यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया है, ये COH है। दिस इज बेसिकली अमीनो एसिड्स, और जो बचा कुछ हिस्सा है ये आपका अगेन पेप्टाइड है। नाउ द सेकंड स्टेप in this is deamination. What is deamination? Deamination is removal of amino group from amino acid
फॉर क्रिएशन ऑफ अमोनिया एंड एन ऑर्गेनिक एसिड। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि आपका ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे अमीनो एसिड्स में लगा हुआ है, ये अमीनो एसिड्स का ये NH2 आपको अल्टीमेटली NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ? बाय टेकिंग अप 1H फ्रॉम दिस and ट्रांसफरिंग 1H to this NADH, मेकिंग इट NAD को H देने के बाद NADH बन गया और H+ बन गया, और ये H+ फाइनली अमीनो एसिड्स के साथ ऐड करके अमोनिया यील्ड करेगा, और बचा हुआ जो हिस्सा है ये आपका एक ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। एंड दिस ऑर्गेनिक एसिड विल बी टेकन अप इन द ग्लाइकोलाइसिस और इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, डिपेंडिंग ऑन कि ये कौन सा वाला अमीनो एसिड है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ डीएमिनेशन, जिसके अंदर अमोनिया अमीनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है वो अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका अमोनिया। एंड देन द थर्ड स्टेप is that since this ammonia is toxic, it must be converted to urea. So as a result, what happens is that this ammonia reacts with this H ion to give you ammonium, and from this ammonium ultimately urea is synthesized, and this urea is then further dissolved into, filtered through kidneys, and it dissolves in water and ultimately reaches out of the body from the your urine. So now ultimately we can say that the metabolism of protein is metabolism of amino acids. Ultimately प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ही अमीनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म है। यदि हम देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है, हमको दिख रहा है, जो कि एक प्रोटीन को डिपिक्ट कर रहा है, जिसके एक एंड पर NH2 है, दूसरे एंड पर COH है, जिससे पता चल रहा है कि एक अमीनो एसिड है। So metabolism of amino acids is part of nitrogen metabolism in the body. If you remember my introductory classes when we were starting with biochemistry, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में सिंस वी आर अ कार्बन फॉर्म ऑफ लाइफ, तो हमारी बॉडी में जो रॉ मटेरियल हम अंदर लेते हैं वो कार्बन बेस्ड होता है, जिससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं। और अब जब हम एनर्जी डिराइव कर चुके होते हैं तो हम बेसिकली बॉडी के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट्स को बाहर निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिया। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स इज पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली जो प्रोसेस हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटा निकलता है वो बेसिकली नाइट्रोजन के फॉर्म में निकलता है। सो नाइट्रोजन एंटर्स इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ अ डाइटरी प्रोटीन। प्रोटीन्स के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजन एंट्री पाता है। एंड डाइटरी प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एज सच बट यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स ड्यू टू देयर कंटिन्यूस ब्रेकडाउन ऑफ एंडोजिनस टिश्यू प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी में एज सच स्टोर तो डाइटरी प्रोटीन नहीं हो सकता, यानी हम जो भोज्य पदार्थ में प्रोटीन्स ले रहे हैं, डाइटरी प्रोटीन्स ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में एज सच तो स्टोर नहीं होता, बट टिश्यू प्रोटीन्स में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये टिश्यू प्रोटीन्स के रूप में बॉडी के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन बन गई अमीनो एसिड से, या DNA फॉर एग्जांपल हमको पता है कि कहीं ना कहीं संबंधित है उनसे, तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एंडोजिनस प्रोटीन्स, टिश्यू प्रोटीन्स बन जाते हैं। अगर आप प्रोटीन्स की बात करें तो हमारे शरीर में दो प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं। पहला एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। हमको पता है ये बात कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारे शरीर में बन भी सकते हैं, वेयर एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए हम लोग डाइट पे निर्भर हैं, हम लोग डाइटरी सिस्टम्स पे निर्भर हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो हमारे शरीर के जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके नाम है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलीन, मीथियोनिन, फिनाइलैलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, सीरीन, टायरोसिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन, दीज आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक आपको और मैं बता दूं कि हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन दीज आर सेमी एसेंशियल। ये दोनों हिस्टीडीन और आर्जिनिन जो है ये सेमी एसेंशियल्स हैं, बिकॉज दीज आर एसेंशियल ओनली फॉर इन्फेंट्स ग्रोथ। यानी जो एकदम बच्चे पैदा हुए हैं 1 साल से कम जिनकी उम्र है, जिनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। बट ओल्ड चिल्ड्रन या एडल्ट्स के लिए ज़रूरत इसकी, इट इज़ नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड्स, है ना। इन एडल्ट्स हिस्टीडीन रिक्वायरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड आर्जिनिन बाय यूरिया साइकिल। तो हमारे शरीर में जब यूरिया साइकिल चालू हो जाता है तो उसके अंदर से आर्जिनिन मिलना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे शरीर में जो रहने वाले वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमको हिस्टीडीन प्रोवाइड कर देते हैं। सो हिस्टीडीन और आर्जिनिन केवल जो इन्फेंट्स होते हैं उनके लिए एसेंशियल है, इसलिए इनको सेमी इसेंशियल कैटेगरी में डाला गया है। याद रखिएगा ये 1 मार्क का
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि विच अमीनो एसिड्स आर सेमी इसेंशियल इन नेचर। प्लीज़ इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। So for formation of new tissue protein, all essential amino acids that cannot be synthesized in the organisms and provided by dietary protein must be present at the same time with non-essential amino acids that can be synthesized by an organism. तो नया टिश्यू प्रोटीन यदि आपके शरीर में बनना है तो उसके लिए आपको सारे के सारे जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और सारे के सारे जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनकी ज़रूरत है वो एक ही समय पर उस वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, इसके लिए हम डाइट पे निर्भर करते हैं, वेरएज जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन बैलेंस, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो नाइट्रोजन बैलेंस इज बेसिकली अ कंपैरिजन बिटवीन नाइट्रोजन इनटेक एंड नाइट्रोजन लॉस, यानी हम कितना नाइट्रोजन शरीर में ले रहे हैं और कितना नाइट्रोजन का हमारे शरीर से लॉस हो रहा है, इसके बीच का जो बैलेंस है, इनटेक माइनस आउटपुट या फिर इनपुट माइनस आउटपुट को जो हम कंपेयर करते हैं तो हमको मिलता है नाइट्रोजन बैलेंस। तो नाइट्रोजन इनटेक इज इन फॉर्म ऑफ डाइटरी प्रोटीन, वेयर एज नाइट्रोजन लॉस इज द loss of nitrogen as undigested protein in the feces. Okay, NPN as urea, ammonia, creatinine and uric acid in urine, sweat and saliva, and losses by hair, nail, skin, etc. So this is all leading to the nitrogen loss, यानी हमारे शरीर में कितना नाइट्रोजन आया, किस तरीके से हमने लिया, जो कि हम डाइटरी प्रोटीन्स पर निर्भर हैं जिनके माध्यम से नाइट्रोजन हमारे शरीर में आया है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन हमारे शरीर से जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जो फीसिस में जा रहे हैं या फिर यूरिया अमोनिया के रूप में जो हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। नाइट्रोजन बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द ओवरऑल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल एंड न्यूट्रिशनल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। और ये बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमको बताता है कि ओवरऑल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किसी इंडिविजुअल का कैसा है, और दूसरा उसकी न्यूट्रिशनल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट किस प्रकार की होगी। ये हमारा नाइट्रोजन बैलेंस हमको बता पाएगा कि उसको दिन में कितना लेना चाहिए प्रोटीन या कितना नहीं लेना चाहिए। नाउ देयर आर 3 states that are known for nitrogen balance. A person can be normal. We can define a person as a normal adult or a person who is having positive nitrogen balance and somebody who can have a negative nitrogen balance. तो 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं। नॉर्मल एडल्ट वो होगा who will be in the nitrogen equilibrium state, that is the losses are equal to the intake, यानी जितना उसको लॉस हो रहा है प्रोटीन का या जितना उसका लॉस नाइट्रोजन का हो रहा है लगभग उतना ही नाइट्रोजन वो यदि ले रहा है तो वो एक नॉर्मल एडल्ट होता है। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस उन लोगों में होगा जिनके अंदर नाइट्रोजन का इंटेक ज़्यादा है मुकाबले या बनिस्बत लॉसेस के, यानी जिनके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा आ रहा है पर जा कम रहा है। ये कौन से लोग होंगे, जो ग्रोथ हो रहे होंगे ऑब्वियसली जिनमें, है ना। तो हाई फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स विच ऑकर्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन और इन प्रेगनेंसी और इन लैक्टेशन और इन कन्वर्सल्स, यानी बीमारी से जब हम उठते हैं उस वक्त हमारे शरीर में नाइट्रोजन का रिटेंशन ज़्यादा होता है, लॉस कम होता है, तो वो वाला जो स्टेज होता है वो आपका पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। एग्जांपल के तौर पे ये भी हो सकता है कि somebody कोई बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बिल्ड कर रहा है तो ज़्यादा नाइट्रोजन लेता है और उसके अंदर मसल मास जब ग्रो होता है तो उसके अंदर नाइट्रोजन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की तरफ जाता है, बिकॉज शरीर के अंदर नाइट्रोजन रिटेन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ मसल्स और इन फॉर्म ऑफ एनी अदर थिंग, तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। वेयर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, इट इज़ समथिंग वेयर नाइट्रोजन लॉसेस आर मोर देन इनटेक, जिसमें शरीर के अंदर से नाइट्रोजन ज़्यादा जा रहा है और इनटेक वो व्यक्ति कम ले रहा है जिसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में आ जाता है। ये किस किस केस में हो सकता है, दिस कैन ऑकर इन आइदर फर्स्ट केस इज लो इनटेक ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्टारवेशन, इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन और GIT डिजीजेस। इन सब स्टेजेस में जब व्यक्ति या तो लंबे समय से फास्टिंग पे है या उसको भोजन बराबर से नहीं मिल रहा है, मैल न्यूट्रिशन उसको हो रही है, स्टारवेशन हो रहा है, उसकी वजह से लो इनटेक ऑफ प्रोटीन है, यानी वो ले ही कम पा रहा है प्रोटीन। या फिर सेकेंड केस हो सकता है लॉस ऑफ हाई लॉस ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, उसके अंदर से शरीर के अंदर शरण ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से उसके अंदर प्रोटीन का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल वेस्टिंग डिजीजेस लाइक बर्न्स, हीमोरेजिया या हिमरेज, किडनी डिजीजेस एंड एल्बिनिमीरिया, जिसमें एल्ब्यूमिन यूरिया हो जिसमें हो रहा है, तो वो केसेस में उसका हाई टिश्यू लॉसेस हो सकते हैं। एंड थर्ड केसेस हाई ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू प्रोटीन,
यानी कि शरीर के अंदर से टिश्यू का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल इन केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। यदि आपको याद हो, जब मैंने आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोनियोजिनेसिस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आप लोग उस वक्त कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर शरीर को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज की कमी है, तो शरीर उस केस में डिपॉजिटेड जो शरीर के अंदर जो डिपॉजिट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर टिश्यू प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन बहुत हैवी होता है और ज़्यादा तेज़ी से उनका वज़न कम होता है, विच इज़ ऑल्सो अ कार्डिनल साइन। अगर हम पहचानना चाहें किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ तो नहीं है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर उसने उस व्यक्ति का कुछ समय से वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसको हम लोग उस कैटेगरी में ले जा सकते हैं कि शायद इस व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। हम देखते हैं कि अचानक वो व्यक्ति जो पहले हृष्ट पुष्ट था या थोड़ा मोटा था, वो सडनली यदि उसका वजन तेज़ी से कम होना चालू हो या उसके शरीर का वजन उस शरीर का बल्क यदि कम होता हुआ दिखाई दे, तो हम समझ सकते हैं कि शायद इस व्यक्ति को डायबिटीज़ मेलाइटस है। नाउ इस स्लाइड के बाद मैं आज की क्लास को स्टॉप करूंगा, बिकॉज काफ़ी टॉपिक हम अभी पोर्शन हम कवर कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में आने वाले हैं, इसलिए आई वुड लाइक टू स्टॉप आफ्टर दिस स्लाइड। So now let us discuss the protein requirement for humans in healthy and disease conditions. Obviously जब healthy condition में होता है तो उसका requirement अलग होगा, जब वो convulsions या disease condition में है तो उसका requirement obviously किसी व्यक्ति का अलग होगा. So the normal daily requirement of proteins for adult is 0.8 ग्राम per kg body weight. यानी यदि आप फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 10 किलो का 100 किलो का है, ठीक है ना, तो उसको 0.8 इंटू 100 दैट इज़ 80 ग्राम उस व्यक्ति को प्रोटीन रोज़ाना लेना चाहिए। सो इट इज़ 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे, यानी एक दिन में उस व्यक्ति को 0.8 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना चाहिए। ये भी आपका एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, हो सकता है ये भी आए। सो द रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज इन हेल्दी कंडीशंस ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड एडोलेसेंस। ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हेल्दी कंडीशन में भी व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज रहती हैं, यानी 0.8 से बढ़कर 1.2 भी हो सकता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज इन डिजीज स्टेट्स ऑल्सो, लाइक मेजर इलनेसेस, लाइक मेजर ट्रॉमा या सर्जरी से कोई व्यक्ति निकला है तो उस वक्त उसकी टिश्यूज़ को रीजनरेट होना है, इसलिए उस वक्त भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड लास्टली, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन शुड बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ हेपेटिक फेलियर और रीनल फेलियर। और यदि किसी व्यक्ति का यदि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लीवर फेलियर है या किडनीज फेल है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफ़ी रिड्यूस हो सकती हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ BV, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, and we will talk about the various stages which are occurring in the digestion, like the gastric phase, like pancreatic phase and the intestinal phase, and then we will talk about the absorption of amino acids, di and tripeptides in my classes to come. और since last 4 minutes are remaining, मैं आपको एक important point यहाँ पे discuss करना चाहूँगा. For example, since it has happened with me कि when I was suffering with the COVID-19 and I was admitted at AIIMS Bhopal, which is a personal experience, that is why I'm telling you people, that I lost around 14 kgs of body weight in 14 days, यानी लगभग 14 दिनों के अंदर मेरे शरीर से 14 किलो वजन कम हुआ. I was around 75 kgs before going into the hospital, and when I came back I was almost in the range of 62 to 63 kgs, which was a huge loss. एंड आई वॉज वेरी वेरी वीक बिकॉज मेरे शरीर के अंदर से काफ़ी प्रोटीन लॉस हुआ था. बट एट द सेम टाइम मैं अब केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट जहाँ 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है, वहीं पे एज सुन एज आई केम ऑफ द हॉस्पिटल आई इंस्टेंटली स्टार्टेड ऑफ विद टेकिंग अप द प्रोटीन. मैंने प्रोटीन का इनटेक बढ़ाया, तो आई वॉज कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 200 ग्राम पनीर पर डे. सो यू कैन इमेजिन कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सिंस आई एम अ वेजिटेरियन, I have a vegetarian diet, that is why डॉक्टर्स रिकमेंडेड कि भाई इस व्यक्ति को कम से कम 100-150 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए पर डे. और दूध उसके अलावा मैं लगभग रोज़ाना 1 पाव दूध से आधा किलो दूध तक पीना पड़ रहा था, बिकॉज सिंस आई वॉज मेजर प्रोटीन डेफिशिएंसी वॉज देयर इन मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So we can I'm just correlating this fact that whereas the normal requirement is only 0.8 gram per day per kg, depending on the body weight, I was when a person is coming out of a disease और एक किसी disease condition से यदि वो बाहर आता है, तो लगभग उसको जो अपनी requirements हैं अमीनो एसिड्स की वो काफ़ी हाई रखनी पड़ती हैं.
So that is all from my side in the first part of my lecture of amino acid metabolism, where today we have discussed introduction to the topic. We have talked about some classifications of amino acids, essential and non-essential, and we have also discussed some definitions like nitrogen balance and protein requirement. And in my next class, I would start my topic with the biological value of protein, which is a very small topic, and then we will go on for very important further topics like digestion of protein, absorption of protein, metabolic fate of protein, and I'll try to complete my class with the end of urea cycle. So that's all from my side. I am Dr. Sukhwant Singh from SIITS Pharmacy, Bhopal, the SAGE Group, and thank you very much for joining this class of amino acid metabolism. Thank you very much.